میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، پھر میں ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس وقت مجھے 2-3 پوائنٹ پر باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے نام ہے شب برات اور دن کا نام ہے 15ویں شعبان والا دن۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں رات اور دن کی خوبیاں ہم کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رات آ رہی ہے ابھی ہمارے سامنے، رات کا نام ہے شب برات۔ ویسے اس کے بہت سارے نام ہیں، حدیث پاک میں کہیں پر اس کا نام آیا لیلۃ البراءہ۔ لیلۃ البراءہ، لیلۃ البراءہ کے معنی آتے ہیں معافی والی رات، یعنی یہ رات میں ہم سب اللہ سے بہت مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ سے بہت مانگیں گے، یہ رات میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا نام اس رات کا ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، یعنی ہم اللہ سے رحمت مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، صبح ہونے سے پہلے اللہ رحمت کے سمندروں میں ہمیں رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا نام ہے جو قرآن کریم نے اس کا نام دیا لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے۔ قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی یہ برکت والی رات ہے، اللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اور ایک چوتھی بات آپ کو کہنا ہے کہ جیسے پہلا نام اس کا لیلۃ البراءہ ہے، اس کا نام لیلۃ الرحمہ ہے، اس کا نام لیلۃ المبارکہ ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ الصق۔ یہ چوتھا نام پر توجہ دینا، لیلۃ الصق، یعنی یہ فیصلے والی رات ہے، یہ فیصلے والی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ رات میں فیصلہ کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے کہ رات میں فیصلہ ہونے والا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے والی رات ہے، یعنی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں جو انڈیا میں رہنے والے، یہ تھرسڈے کی جو رات آئے گی، تھرسڈے اور فرائیڈے کے بیچ کی جو رات ہوگی نا، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فیصلے کریں گے۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ آنے والے سال میں کون غریب ہوگا، کون امیر رہے گا، آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، آنے والے سال میں کون نکاح کرے گا، اور جس کے گھر کا نکاح اللہ نہ کرے یہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کس کے گھر میں نکاح ہوں گے، کس کے گھر میں طلاقیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ یہ آنے والے سال میں کون جیے گا اور کون مرے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہتی تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ رات میں فیصلہ کریں گے کون جیے گا اور کون مرے گا، مگر ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو کلمہ ملے گا اور کس کو کلمہ نہیں نصیب ہوگا، کون سعید ہوگا اور کون شقی ہوگا، کون کلمے والا جائے گا، کون بغیر کلمے کی دنیا سے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، میری مرضی، جس کو چاہوں کلمہ دو اور جس کو چاہوں تو موت کے وقت کلمہ چھین لو۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کتنے عجیب انداز میں فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دے دو، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ لے لو۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ آنے والی رات شب برات، جس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے، لیلۃ البرکہ بھی کہتے، یہ فیصلے کی رات ہے۔ اسی رات میں فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں کون جیے گا، کون مرے گا، کسے کلمہ ملے گا، کسے کلمے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ رات
आ रही है हमारे लिए फैसले की रात है मेरे भाइयों, रहमत वाली रात है, बरकत वाली रात है। हम में से किसी को नहीं मालूम आइंदा साल ये रात हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए बस ये जुमेरात को मगरिब के बाद अपने आप को इबादत में लगाए सुबह तक इबादत में लगाए रखे। अल्लाह से रहमत मांगे क्योंकि रहमत वाली रात है, बरकत मांगे क्योंकि बरकत वाली रात है, अल्लाह से माफी मांगे क्योंकि लैलतुल बरा है, और अपने फैसले के बारे में अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरे लिए ईमान का फैसला फरमा दे, अल्लाह तंदुरुस्ती का फैसला फरमा दे, अल्लाह अमीरी का फैसला फरमा दे, अल्लाह अच्छी जिंदगी का फैसला फरमा दे, अल्लाह अच्छे ईमान का फैसला फरमा दे, अल्लाह ये दौलत उज़्मा हम सबको नसीब फरमाए। एक बात तो मुझे ये कहना, दूसरी बात ये कहना कि ये जो रात है ना जो भी आ रही है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये रात आई तो क्या हुआ। हदीस पाक में लिखा है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ईशा की नमाज के बाद मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए। हजरत आयशा फरमाती है मेरे नबी घर में आए और आकर मेरे बगल में सो गए। जो चादर मैंने ओढ़ी थी उसी चादर का हिस्सा आपने भी ओढ़ लिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती मैं भी थकी हुई मैं सो गई, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमाने लगे। हजरत आयशा फरमाती आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास नहीं है, अल्लाह के रसूल मेरे पास नहीं। हजरत आयशा फरमाती मैं चौंक गई कि अल्लाह के रसूल शुरू रात में तो मेरे साथ में थे, अरे थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ में थे, मेरे बगल में सोए थे, और अल्लाह के रसूल अभी कहाँ चले गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती मैं बहुत हैरान साफ फरमाती हजरत आयशा हमारी माँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साफ फरमाती मुझे डर लगा कि कहीं अल्लाह के रसूल किसी और बीवी के कमरे में तो नहीं चले गए, कोई और ज़ौजा मुहतरमा के कमरे में तो नहीं चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मैं आपके बगैर कैसे रह सकती, मुझे छोड़कर कैसे चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा क्या तुम्हें मालूम नहीं आज शाबान की 15वीं रात है, आज शबे बरात है। मैं जन्नतुल बकी में था, बकी कब्रिस्तान में था, और फरमाया आयशा आज रात क्या शान होती है, क्या शान होती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज रात क्या होता। फरमाते अल्लाह पहले आसमान पर आता है, अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आते और आकर पूछते हैं कोई माफी मांगने वाला आज मैं उसके गुनाहों को माफ कर दो, है कोई जरूरत मांगने वाला मैं उसकी जरूरत को पूरा करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला आज मैं उसे बख्श दो, है कोई परेशान हाल तो आज उसकी मैं परेशानी दूर कर दूं। फिर हमारे नबी ने फरमाया आयशा अल्लाह पहले आसमान पर आकर ऐलान करते कोई माफी मांगने वाला है, और आज रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देंगे। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु कल्ब, वहां हर घर में कम से कम 100 सवा 100 बकरियां होते थे। हमारे नबी ने फरमाया कबीला बनु कल्ब के महल्ले में जितने बकरे और बकरियां हैं उनके बदन पर जितने बाल है उन बालों की तादाद में अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देगा। तो ये रात आ रही है मेरी माँ बहने बेटियां और मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है हम सब लॉकडाउन में हैं, हम सब अपने घरों में हैं। बेशक ये रात को कब्रिस्तान जाना होता है लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई सबसे मेरी दरखास्त है कोई कब्रिस्तान की तरफ न जाए, अपने घर में बैठे बैठे सवाब पहुंचाए। जैसे हम कब्रिस्तान में जाके हमारे मरहूमीन और मरहूमात को सवाब पहुंचाते हैं ना, तो हम घर में बैठे बैठे सवाब पहुंचाए। और ये रात आ रही है, बहुत प्यारी रात है मेरी माँ बहनों, बहुत प्यारी रात है ये रात। यानी थर्सडे हमारे लिए तो बहुत, यानी ये हम लोगों के लिए तो एक डबल अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत खुशी की बात है कि हमको तो एक तरफ जुमेरात की रात यानी एक तरफ तो हमको जुमा की रात मिल रही है और साथ में वो बारात वाली रात भी है और दिन जुमा मिल रहा है और वही दिन 15वीं शाबान भी है। तो हमको जुमा के दिन इंशाअल्लाह रोजा रखना है।
यानी थर्सडे को मगरिब से हम इबादत में लगे, इबादत में लगे, इबादत में लगे, इंशाअल्लाह सहरी तक इबादत में लगे, सहरी तक इबादत में लगे, और फिर अच्छे अंदाज में सहरी करे और रोजा रखे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फसूमू नहारहा व क़ूमू लैलहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी 15वीं शाबान की रात आ जाए, रात भर इबादत में निकालो और दूसरे दिन रोजा रख लो। उलमाए किराम ने लिखा है कि रोजा रखना मुस्तहब है, रोजा रखना मुस्तहब है। लेकिन मैं फिर एक मर्तबा कह रहा हूं कि खास करके हम इंडिया वाले कितने खुश नसीब है कि जो रात हमको मिल रही है ना, वो जुमा की रात, एक तो जुमा की रात, मगफिरत की रात, रहमत की रात, और साथ में वो शब बारात भी है। यानी दो दो चीजें, जुमा की रात का फायदा भी उठाना है और शब बारात का भी फायदा उठाना। और दूसरे दिन जुमा आएगा, फ्राइडे आएगा, तो जुमा का दिन वैसा भी यौमुन अजीम, बहुत बड़ा दिन है। जुमा का दिन यौम ईद, ईद का दिन है। जुमा का दिन वैसे भी बहुत ही खुशियों का दिन है, और उसी दिन में 15वें शाबान का हमको रोजा रखना है। उलमाए किराम ने ये रोजे को नफल बताया है, उलमाए किराम ने ये रोजे को मुस्तहब बताया है। इसका मतलब है कि रोजा रखने वाले को बहुत सवाब है, और न रखने वाले पर कोई मलामत नहीं, कोई लान तान नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। क्योंकि ऐसे भी अगर कोई नफल रोजा रखे, आम दिनों में कोई नफल रोजा रखे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसको जहन्नम से बहुत दूर कर देता, अल्लाह उसको जहन्नम से बहुत दूर कर देता। एक साहबी ने पूछा कि कोई नफल रोजा रखे और आम दिन में रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जहन्नम से कितना दूर करता? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कौवे की उम्र बहुत लंबी होती है, 700 साल 600 साल, मालूम नहीं कितनी कौवे की उम्र लंबी होती है, तो अल्लाह एक नफल रोजा रखे तो जहन्नम से इतना दूर करता है। तो कोई अगर 15वीं शाबान का रोजा रखे, और वो भी जुमा का दिन, और नफल रोजा और मुस्तहब रोजा, तो कहां से कहां जहन्नम से दूर हो जाएगा। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा सबसे दरखास्त करूंगा कि हम इस रात को, आने वाली रात को गनीमत समझे। अच्छा, दो बातें और करनी है। एक बात तो ये करनी है कि ये रात में कौन सी दुआ मांगने का, तो मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से कहूंगा, रात को इबादत में लगे रहे। यानी थर्सडे कि मगरिब से लेकर फ्राइडे सहरी तक इबादत में लगे रहे। जो भी इबादत समझ में आए तो कुरान पाक की तिलावत करे, नफल नमाज पढ़े, कज़ाए उम्री करे, तहज्जुद पढ़े, तस्बीहात पढ़े, सलातुल तौबा पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े, सलातुल शिफा पढ़े। इस वक्त जो कोरोना वायरस फैला हुआ, इस वबा से दूर के लिए 2 रकात नमाज पढ़े। यानी बहुत सारे हमारे पास नमाज पढ़ने की नियत कर करके नमाज पढ़े, सलातुल तस्बीह पढ़े। लेकिन दुआ कौन सी मांगे, तो खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, अलग अलग अल्फाज से मरवी है। मैं वो दुआ इंशाअल्लाह आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, लेकिन वो दुआ बहुत प्यारी दुआ है। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। और एक दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। देखो, अरबी में अगर दुआ याद ना हो तो जो जुमले में बताता हूँ वो जुमले रात को जरूर एक मर्तबा तो बोले, ताकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ पर अमल हो जाए। क्या दुआ मांगने का? पहली दुआ मांगने का, अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक, ए अल्लाह तू तेरी नाराजगी दूर कर दे और तू राजी हो जा। नंबर 1, अल्लाह तू नाराजगी दूर कर दे और तू राजी हो जा। नंबर 2, अल्लाह तेरा अजाब दूर कर दे और तेरी माफी करीब कर दे। अल्लाह तेरा अजाब दूर कर दे और तेरी माफी करीब कर दे। और तीसरी बात, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ गया, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ गया। और चौथी बात, ए अल्लाह मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता, तू ऐसा ही बड़ा है जैसा तूने खुद तेरी तारीफ की है। अल्लाह मैं क्या तारीफ करूं, मैं तो नालायक बंदा बंदी, मैं क्या तारीफ करूं। तू इतना बड़ा कादिर मुतलक है, जैसा तूने अपनी तारीफ की तू वैसा ही है। और साथ में ये दुआ भी मांगे, अल्लाह तू तो माफी को पसंद करता है ना, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, अल्लाह तू हमको भी माफ कर दे। तो ये वो दुआ का तर्जुमा मैंने किया जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताया करते थे। तो
और स्क्रीन पर भी वो दुआ आपको आ जाएगी। अब एक बात मुझे कहना, आखिरी बात, कि देखो ये बड़ी रात आने वाली है, लॉकडाउन होगा, लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और न करें जैसे हमको बताया गया है, जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। हम घर में रहेंगे, हम सब घर में रहेंगे और घर में बैठ के इबादत करेंगे। और सही बात है, आज हमको बाहर जाने नहीं मिलेगा, कब्रिस्तान जाने नहीं मिलेगा, मस्जिद में जाने नहीं मिलेगा, और हम घर में रहेंगे तो हमारा दिल टूटा होगा, हमारा दिल टूटा होगा। बार बार याद आता होगा कि गुज़श्ता साल, लास्ट ईयर हम कैसे मस्जिद में गए थे, लास्ट ईयर हम कैसे कब्रिस्तान में गए थे, लास्ट ईयर हम कैसे हमारी माँ और अब्बा की कब्र के सामने गए थे, लास्ट ईयर हम कैसे रात को मस्जिद में बैठ के इबादत करते थे। लेकिन ये साल लॉकडाउन है, हम घर में रहेंगे, हमारा दिल टूटा हुआ होगा। फिक्र मत करो, टूटे हुए दिल के पास अल्लाह हुआ करता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते 7 आसमान मुझे समा नहीं सकते, 7 आसमान मुझे समा नहीं सकते, 7 जमीनें मुझे समा नहीं सकती, लेकिन मुसलमान का टूटा हुआ दिल मुझे समा लेता है। तो हमारा टूटा हुआ दिल होगा, उस टूटे हुए दिल में अल्लाह होगा, और अल्लाह हमारे दिल में होगा। जो भी मांगते जाएंगे, हम गम में है, दुख में है, पूरा वतन गम में है, पूरी दुनिया दुख में है, हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेंगे। और एक बात बता दूं कि रात को इबादत करने से पहले अपना लोगों से मामला साफ कर ले। अगर आप किसी से बात न करते हो तो उसे माफी मांगकर बात करना शुरू कर दे। अगर आपके अम्मा अब्बा आपसे नाराज हो तो उनको राजी कर ले, खास करके ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर जो मगरिब की नमाज पढ़ो जुमेरात को, और फिर जो इबादत में लगो, खाओ पियो सहरी तक, और खूब इबादत करो। लेकिन पहले मामला साफ, सबसे मामला साफ। किसी से बात न करता हो तो बात कर ले, किसी का हक दबाया हो तो उसका हक वापस कर दे। अगर अपने माँ बाप नाराज हो, खास करके माँ बाप नाराज हो, तो उनको राजी कर ले। मैं एक बात बताकर बात खत्म करूंगा। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा दर्जा है, माँ का दर्जा बहुत बहुत बहुत, अल्लाह की कसम इतना ऊंचा दर्जा है कि एक मरतबा एक अल्लाह के वली बैठे थे, उनके बहुत सारे मुरीदीन बैठे थे, और वो सारे मुरीदीन कहने लगे, हजरत हम रोज आपकी मजलिस में आते, आप कोई चीज हमसे मांगते नहीं है, कभी आप खाना भी नहीं मांगते, कभी पैसा भी नहीं मांगते, कभी कपड़ा भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, हम रोज आपकी मजलिस में आते, आप कुछ भी हमसे मांगते नहीं। तो वो जो अल्लाह के वली बैठे थे बड़े प्यार से कहने लगे, भाई मैं कुछ नहीं मांगता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं अल्लाह से मांगता हूँ। तो सारे मुरीदीन ने बार बार कहा कि आप कुछ तो मांगे ना, आप कुछ तो हमसे मांगे ना। तो अल्लाह के वली ने कहा, जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आ जाओ, जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आ जाओ। सारे मुरीदीन, जितने लोग बैठे थे, जितनी पब्लिक बैठी थी, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि हजरत तो कहते जन्नत की मिट्टी लेकर आओ, हमने जन्नत देखा ही कहा है कि हम जन्नत की मिट्टी लेकर आए। मैं जन्नत देखा हो तो वहां जाके जन्नत की मिट्टी लाए। एक मुरीद जो इनके खास मुरीद थे उठे, कहा हजरत में लेकर आता हूं। सारे लोग हंसने लगे, लो ये चला, अब जन्नत की मिट्टी लेने के लिए चला। थोड़ी देर में वो कुछ धूल लेकर आया, अपने हाथ में कुछ गुबार और धूल लेकर आया। हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया, बता दो तुम कैसे जन्नत की मिट्टी लेकर आए हो। तो हजरत, उस मुरीद ने कहा, नहीं हजरत आप ही बता दो कि मैं ये कैसे जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने फरमाया, ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। और कैसे लेकर आया? ये सीधे घर गया, सीधे घर गया। इसकी माँ लेटी हुई थी, माँ के पाँव के तलवे में, माँ के तलवे में जो धूल लगी थी, माँ के तलवे में जो धूल लगी हुई थी, जो पाँव में धूल लगी हुई थी, उसको उसने अपने हाथों से रगड़ा और अपने हाथ में लेकर आ गया। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है, तो माँ के कदमों के नीचे जो मिट्टी लगी वो लेकर आया, तो वो जन्नत की मिट्टी लेकर आ गया। यानी दुनिया में भी जन्नत की मिट्टी हमारे हाथ में आ सकती है। अगर कोई अपने माँ के तलवे से गुबार ले ले तो समझ लो कि उसने जन्नत की मिट्टी को अपने हाथ में ले लिया। और अल्लाह तो खुद फरमाते हैं, अल्लाह तो खुद फरमाते हैं कि माँ बाप के सामने आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात, कभी माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अगर तेरे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, कभी उनके सामने उफ भी मत करना। तो खैर
اب یہ رات آ رہی ہے، انشاءاللہ اگر موقع رہا تو رات کے سناٹے میں ہم دعا بھی کریں گے اور دعا آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن آپ لوگ بھی بہت بہت دعا کریں، خاص کر کے اس وقت کے جو حالات ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، جو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور معلوم نہیں کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے اسپتال میں تڑپ رہے ہیں، ہم سب کے لیے بہت بہترین موقع ہے شب برات، اس شب برات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو جو باتیں کہی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔